This video is for midpoint theorem and converse of midpoint theorems. These theorems are for exercise 8.2 quadrilaterals. The first is your statement. This is the name midpoint theorem. If a line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to the third sides and equal to half of it, given in a triangle ABC. D and E are the midpoints of the side AB and AC respectively. To prove DE parallel to BC, this D and E parallel to BC and DE is equal to half of BC. Constructions through C. Draw a line CF parallel to BA so that it intersect DE. DE produced, मतलब इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो F के ऊपर मिलेगी. ये इसकी कंस्ट्रक्शंस हैं. प्रूफ सिंपल है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स A, D and E and triangles C, F and E. Angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angles. Angle 3 is equal to 4 BA parallel to CF and AC is transversal. Alternate interior angles and AE is equal to EC given because E is the midpoints. This implies triangles ADE AAS congruency axiom. So this implies AD is equal to CF and DE is equal to EF CPCT. Since AD is equal to DB given, so from first and second DB is equal to CF and DB parallel to CF. So this implies DB CF is a parallelogram. Opposite pair of a quadrilateral is equal and parallel. तो जब आपकी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज DF is equal to BC and DF parallel to BC.
This implies twice of DE is equal to BC and DE parallel to BC. So this implies DE is equal to half of BC and DE parallel to BC. क्या अगर जो पैरेललोग्राम्स हैं तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरेलल होगा, और यहां से आप चेक कर चुके हैं कि DE इज इक्वल टू EF, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब DF को आप ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं, ठीक है। DF को आप ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने से बहुत सिंपल है। याद रखने का तरीका, पहले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, CP/CT लेके आनी है, ये DE इज इक्वल टू EF करना है, क्लियर, और AD इज इक्वल टू CF करना। तो AD इज इक्वल टू DB हमारे पास ये गिवन में है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये बात क्लियर है कि DB इज इक्वल टू CF। अगर जो DB इज इक्वल टू CF है यहां से, और DB पैरेलल टू CF है, कंस्ट्रक्शंस है, तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। वन ऑपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल। जब ये पैरेललोग्राम होगी तो दूसरा पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल होगा। तो पहले मैंने दूसरा पेयर इक्वल किया, फिर पैरेलल किया, इक्वल में मैंने कंसेप्ट लगा दिया। तो दिस इज योर एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स, ये स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक साइड लेनी है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए इन्हें ट्राइंगल ABC सेम फिगर है, AD इज इक्वल टू DB, ये आपस में इक्वल है, और DE पैरेलल टू BC। टू प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। मैंने कंस्ट्रक्शन भी सेम ली है। थ्रू C ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BA intersecting DE produced at F। Proof, DE parallel to BC, this implies DF parallel to BC, and BD parallel to CF constructions. This implies quadrilateral DBCF is a parallelogram. This implies angle 3 is equal to 4, alternate interior angles। अब यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस में हमने लिया था BA पैरेलल टू CF एंड AC इज ट्रांसवर्स। नाउ this implies BD is equal to CF. So this implies AD
इज इक्वल टू सी एफ बिकॉज ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन में है। Now in triangles ADE and triangles CF and E, क्या आ जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, 3 इज इक्वल टू 4 मैंने अभी अभी प्रूव किया, और AD इज इक्वल टू CF अभी अभी प्रूव किया। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स CF एंड E। कौन सा एक्सियम है? AAS, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। तो दिस इम्प्लाइज AE is equal to EC CPCT, hence proved। देखिए कन्वर्स में बहुत सिंपल किया मैंने। somehow by constructions I have proved that this quadrilateral is a parallelogram। 3 is equal to 4 किया, BD is equal to CF, AD BD के इक्वल तो AD को CF के इक्वल किया। अब AD CF एक रिजल्ट मैंने ड्राइव कर दिया, दूसरा रिजल्ट मैंने 3 इज इक्वल टू 4, तीसरा 1 इज इक्वल टू 2 मुझे पता था, यह भी मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड अबव। इसमें भी हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स, और उसी से आप कह देंगे AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC CPCT। तो इसी से आपका ये रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। तो दिस इज द टू थ्योरम्स, वन इज योर मिड पॉइंट, अनदर इज योर कन्वर्स। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एज फार एज एक्सरसाइज 8.2 is concerned।